Good morning, Honorable Chief Guest, Vice President Sir of our esteemed institution, respected dais, heads, teachers, and my dear students. A very proud, patriotic, and meaningful morning to everyone present here. Today, we are not just celebrating a date on the calendar, we are celebrating the soul of India. The 77th Republic Day is a reminder that India is not only a nation of land and borders, but a nation of values, courage, unity, and character. On this historic day, our Constitution gave us the identity of being not just Indians by birth, but citizens by responsibility. Republic Day reminds us that freedom is not inherited. It is protected by responsibility, sustained by discipline, and strengthened by unity. This year, our celebration becomes more special as we commemorate the 150 glorious years of our national song, Vande Mataram. These two sacred words are not just poetry, they are a prayer, a promise, and a Shakti. Vande Mataram means, I bow to thee, Mother India. It teaches us that patriotism is not loud, it's pure, sincere, silent, and selfless. My dear children, you are the generation of new India. You are growing in a world of technology, speed, competition, and global opportunities. But remember one thing clearly. A strong nation is not built by smart minds alone. It is built by strong character. True courage today is saying no to distractions, standing for what is right, even when it is difficult, choosing discipline over comfort, choosing focus over fun, choosing values over validation. Patriotism today means respecting your teachers, obeying your parents, using mobile phones wisely, being responsible online, studying with dedication, helping others, being kind, honest, and brave. You don't have to wait to grow up to serve the nation, dear students. Your discipline today is your service. Your honesty today is your contribution. Your hard work today is your nation building. Respected teachers, you are the silent soldiers of the nation. You do not stand on borders, but you guard the future. You do not carry weapons, but you carry wisdom. You do not fight wars, but you fight ignorance, fear, and confusion. Every child you inspire becomes a pillar of nation. Every value you teach to these children becomes a law of their life. Every lesson you give becomes a seed of leadership. Teachers don't just create students, they create citizens, they create leaders, they create India. Dear parents, you are the first teacher and lifelong guide of your children. School can educate, but homes shape character. Classrooms can teach knowledge, but families teach values. When parents and teachers walk together, a child walks confidently. When home and schools unite, a nation becomes strong. Let us raise children who are not just successful in careers, but successful in life. Not just achievers, but contributors. Not just educated, but enlightened from within. As educators, our mission is clear. We are not here to create job seekers. We are here to create nation builders. We are not here to produce rank holders only. We are here to produce value holders. Our school believes in education with values that builds strong mind, brave heart, disciplined habits, emotional strength, moral courage, social responsibility. Because the future India needs is not just a developed India, it is a value-driven India. Not just a digital India, but a disciplined India. Not just a powerful India, but a purposeful India. Let us all silently pledge today to live with integrity, responsibility, to think with wisdom, to serve with humility, to lead with courage, and to love our nation not just in words but in actions. Let the spirit of Vande Mataram guide our lives. Let the Constitution guide our conduct. Let our children become the strength of India, because when students rise, India rises. When teachers shine, India shines. When parents unite, India becomes unstoppable. This is all my message to all of you, dear children. Work hard, study well, behave well, develop a strong and good moral character so that you will become tomorrow's responsible citizen of this successful nation. Thank you. Jai Hind.
जय महाराष्ट्र। देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। मेरा गुलाब जूही चंपा चमेली, मेरा गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में गए, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में गए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक प्यारी कभी है गिटेर प्यारी, कोयल की कूक प्यारी कभी है गिटेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगरेग है, गा रही तराना बुलबुल राग मगरेग है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। Respected Administrator Ma'am, respected Principal Ma'am, all the heads, teachers and my dear friends. आन देश की शान देश की हम संतान हैं। आन देश की शान देश की हम संतान है। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, यही हमारी पहचान है, यही हमारी पहचान है। With this feeling of pride and unity for our nation, we wish you a very happy Republic Day. भारत
Honorable Chief Guest, respected Administrator Ma'am, Principal Ma'am, all heads, teachers and my dear schoolmates. Today, as we celebrate 77th Republic Day, we reflect on a powerful idea that defines the soul of our nation, unity in diversity. India is a land of many languages, cultures, traditions and beliefs. From vibrant festivals to varied customs, every part of our country adds a unique color to the beautiful mosaic of India. Yet, beyond these differences, we share one identity, one constitution, and one dream of a peaceful and prosperous nation. Unity in diversity teaches us to respect each other. It reminds us that our differences do not weaken us. They make us stronger, richer, and more complete as a nation. On this Republic Day, let us pledge to celebrate our diversity with pride and to nurture unity with kindness, understanding, and cooperation. From the snow-capped peak of Kashmir to the shore of Kanyakumari, and from the deserts of Rajasthan to the tea gardens of Assam, we speak differently, we eat differently, and we pray differently. Yet, when the national anthem plays, 1.4 billion heartbeat exact in the same rhythm. This is the power of our Republic nation. As we step into 2026, we see this unity in action every day. We saw it in 2025 when the Youth India worked side by side during the Mahakumbh in Prayagraj to serve the pilgrims. Our unity is our greatest and economic social strength. When we talk about a Viksit Bharat or a developed India by 2047, we are Amrit Pidi. We aren't just talking about skyscrapers and satellites. We are talking about a nation where a scientist from South India, a technician from North India, and a workers from East India collaborate to launch a rocket to the moon. Our diversity brings diversity of ideas, and that is why India is global leader in innovation today. Let's conclude with a thought. Our ability to reach unity in diversity will be the test of our civilization. Let us be Indians first, Indians last, and Indians always. Once again, I wish you all a very happy Republic Day. May our tricolor always fly high, and may the spirit of unity always dwell in our hearts. Together we are one. Together we are Indians. Jai Hind. Thank you. आदरणीय व्यासपीठावरील विराजमान प्रमुख अतिथी व सर्व मान्यवर शिक्षक वृंद आणि माझ्या प्रिय मित्र मैत्रिणींनो, तुम्हा सर्वांना मी भार्गव राजेश कुलकर्णी इयत्ता 6वी आजच्या या पवित्र प्रजासत्ताक दिनाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा देतो. आज आपण आपल्या देशाच्या इतिहासाने दिलेली गौरवशाली गाथा म्हणजेच प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. भारताची स्वातंत्र्याची यात्रा ही संघर्ष, त्याग आणि बलिदानांनी भरलेली आहे. भारताची स्वातंत्र्य यात्रा ही अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर पूर्ण झाली. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव, चंद्रशेखर आझाद, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, तात्या टोपे, मंगल पांडे अशा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या शौर्याने आणि बलिदानाने भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताला एक मजबूत संविधान आणि सरकारची गरज होती. क्रांतिकारकांनी, स्वातंत्र्य सैनिकांनी आणि सामान्य जनतेने एकत्र येऊन ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढा दिला. महात्मा गांधींच्या अहिंसक आंदोलनामुळे आणि असंख्य वीरांच्या बलिदानामुळे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. हे स्वातंत्र्य आपल्याला सहज मिळाले नाही, तर ते लाखो बलिदानांचे फळ आहे. परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाला योग्य दिशा देण्यासाठी मजबूत संविधानाची गरज होती. म्हणूनच 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत प्रजासत्ताक झाला.
या दिवशी भारतीय संविधान अंमलात आले आणि प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार, कर्तव्ये आणि न्यायाची हमी मिळाली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेले संविधान हे आपल्या लोकशाहीचे मजबूत स्तंभ आहे. स्वातंत्र्य आपल्याला अधिकार देते तर प्रजासत्ताक दिवस आपल्याला आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून देतो. आजच्या पिढीचे हे कर्तव्य आहे की आपण स्वातंत्र्य जपू, संविधानाचा सन्मान करू आणि एकजुटीने देशाच्या प्रगतीसाठी काम करू. तिरंगा फडफडतो अभिमानाने आज, शौर्य, त्याग आणि सत्याचा साज, न्याय, समता, बंधुतेचा मंत्र, लोकशाहीचा हा मजबूत तंत्र. प्रजासत्ताक दिन सांगतो नवा करार, संविधानाने दिला समान अधिकार. स्वातंत्र्य जपू, संविधान मानू, एकजूट होऊ, देश महान करू. जय हिंद, जय भारत. लहू वतन का है, रगों में जज्बा हिंदुस्तान है, तिरंगा ही मेरी धड़कन और यही मेरी पहचान है. मैं श्लोक क्षीरसागर, मैं श्रेया जाधव, कक्षा 5वीं से आपके सामने भारतीय संविधान और गणतंत्र का संबंध इस विषय पर अपने मौलिक शब्दों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं. सम्माननीय अतिथिगण, माननीय विद्यालय व्यवस्थापक, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी महोदय महोदया, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की सहर्ष शुभकामनाएं. आज हम सब यहाँ भारत के इतिहास के उस स्वर्णिम दिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बना. गणतंत्र दिवस का भारतीय संविधान से अत्यंत गहरा संबंध है. इसी दिन हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ जिसने भारत को एक नई पहचान दी. 390 से 500 पृष्ठों में लिखा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा, विचारधारा और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है. विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है, जिसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है. अधिकार और कर्तव्य जो हमें बोलने और जीने की आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाता है. भारतीय संविधान हमें यह सिखाता है कि भारत में सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता है. यही गणतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है. हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, बल्कि संविधान के अनुसार निर्वाचित होता है. यह व्यवस्था भारत को एक सच्चा गणराज्य बनाती है. संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों का अधिकार दिया है. मौलिक अधिकारों के माध्यम से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा की गई है. वही मौलिक कर्तव्यों के द्वारा हमें अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाया गया है. इस प्रकार संविधान और गणतंत्र एक दूसरे के पूरक है. अगर संविधान हमारा गौरव है तो गणतंत्र हमारी पहचान है. इस प्रकार एक विशाल वृक्ष को खड़े रहने के लिए अपने जड़ों को मजबूत रखना जरूरी होता है. ठीक इसी प्रकार गणराज्य की विशालता मजबूत संविधान के जड़ों पर निर्भर होती है. कवि मैथिली शरण गुप्त संविधान में निहित बंधुत्व और मानवता का गौरव गाते हुए कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का यही सच्चा अर्थ महान, मानवता ही धर्म बने, यही गणतंत्र की पहचान. अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि संविधान का सम्मान करना ही गणतंत्र का सच्चा सम्मान होता है. आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम एक जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रण लें और अपने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं. स्याही से नहीं बल्कि बलिदानों से लिखा गया हर शब्द में समाया एक स्वप्न नया. यह राजा नहीं करता, न ताज किसी को देता, जनता का सर्वोच्च मान, लोकतंत्र का पथ दिखाता. आओ प्रण ले आज हम इस पावन ग्रंथ का मान रखे, संविधान जिए हमें सदा और भारत का सम्मान रखे. जय संविधान, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. सुप्रभातम. अहम साई पाटील. सुप्रभात. मैं शशांक राठोड. कक्षा सप्तमी. पूज्याया अतिथयः, आदरणीयाः गुरुवः, प्रियाः छात्राः, बान्धवाः च सर्वेभ्यः मम सस्नेहं नमः. पूज्य अतिथिगण, आदरणीय गुरुजनों, प्रिय विद्यार्थियों एवं बंधुओं, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार. अद्य वयं सर्वे अत्र समागताः स्मः देशभक्तिः महोत्सवं गणतंत्र दिवसं महान हर्षेण आचरितुम्. आज हम सभी यहाँ देशभक्ति का महोत्सव गणतंत्र दिवस
बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अयं दिवसः अस्माकं राष्ट्रजीवने अत्यन्तं गौरवपूर्ण दिवसः अस्ति। यह दिन हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक अत्यंत गौरवपूर्ण दिवस है। देशभक्तिः नाम किं? देशभक्ति न केवलं वाक्येषु न केवलं ध्वजवन्दने वा भाषणेषु। देशभक्तिः हृदयस्थः भावः यः अस्मान् राष्ट्रसेवायां प्रेरयति। यथा देशभक्तः छात्रः नित्यं परिश्रम करोति, गुरून् मातापितॄन् च सम्मानयति, स्वच्छतां पालयति, नियमाः अनुशासनं च अनुवर्तते। एतानि कर्माणि एव सत्यदेशभक्तः भवति। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, नहीं केवल ध्वजवंदन या भाषणों तक सीमित होती है। देशभक्ति हृदय में बसने वाली एक भावना है जो हमें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के रूप में एक देशभक्त विद्यार्थी नित्य परिश्रम करता है, माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान करता है, स्वच्छता का पालन करता है, नियमों और अनुशासन का अनुसरण करता है। ये सभी कर्म सच्ची देशभक्ति के उदाहरण हैं। गणतंत्र दिने 26 जनवरी तिथौ देशभक्तिः विविधरूपेण दृश्यते। प्रभाते वयं ध्वजारोहणं कुर्मः, राष्ट्रगीतं गायामः, वीरशहीदानां स्मरामः। गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी देशभक्ति विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। प्रातःकाल हम ध्वजारोहण करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और वीर शहीदों का स्मरण करते हैं। विद्यालयेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः देशभक्तिगीतानि, नृत्यानि, भाषणानि च भवन्ति। एते सर्वे कार्यक्रमाः देशप्रेमस्य सजीवं दर्शनं भवति। विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत, नृत्य और भाषण आयोजित होते हैं। ये सभी कार्यक्रम देश प्रेम की एक जीवन झलक प्रस्तुत करते हैं। एषः दिवसः अस्माकं संविधानस्य अत्यन्तं मूल्याः प्रारयति। समानता, न्यायः, बन्धुत्वं च एतान् मूल्यानि यः पालयति सः एव सत्यदेशभक्तः भवति। यह दिन हमें हमारे संविधान के मूल्यों की याद दिलाता है। समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व। जो इन मूल्यों का पालन करता है वही सच्चा देशभक्त कहलाता है। हे छात्राः, वयं भविष्यस्य भारतस्य आधारस्तम्भाः स्मः। अतः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति विद्या राष्ट्रं सेवितुं, सदाचारैः समाजं शोभयितुं, कर्तव्यपालनेन भारतमातुः मानं वर्धयितुं। प्रिय विद्यार्थियों, हम भविष्य के भारत के आधार स्तंभ हैं। अतः हमारा कर्तव्य है ज्ञान के आधार पर राष्ट्र की सेवा करना, सदाचार द्वारा समाज को सुंदर बनाना और कर्तव्य पालन से भारत माता के गौरव को बढ़ाना। अन्ते अहम् एतदेव वदामि, गणतन्त्रदिवसः न केवलम् उत्सवः अस्ति, अपि तु देशभक्तः जागरणस्य दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् उत्तमान् नागरिकान् भवितुं प्रेरयतु। जयतु भारतम्, जयतु संविधानम्। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, गणतंत्र दिवस केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि देशभक्ति के जागरण का दिन है। यह दिन हमें एक उत्तम नागरिक बनने की प्रेरणा दे। जय भारत, जय संविधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। A major Indian classical dance form that is originated in the state of Tamil Nadu.
A vibrant and energetic dance style originates from the fertile lands of Punjab in northern India. थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोकने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू हो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। Garba is a traditional dance form originated from Gujarat, typically performed during the festival of Navratri. Maharashtra. Gondhar is joy of music, popular in Maharashtra. महामंडलीय प्राणप्रिय ही माय मराठी आमची
झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1 2 3 4 5 6 7 मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। Excellent. Jabbar. Very good. Very nice. Very good. Forward the leg. Excellent. Forward the leg. राष्ट्र देवता राष्ट्र कृष्ण आचंद्र सूर्य मानो स्वातंत्र भारताचे राष्ट्र देवता राष्ट्र कृष्ण आचंद्र सूर्य मानो स्वातंत्र भारताचे। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, Alternate to touch. रंगोली साथ Very good. यहाँ हर कदम Excellent. Standard 6. बदले रंग, यहाँ की Very good. Standard 3rd. 4th. Excellent. कहानी First and second. Too good. Standard 7. Very good. Standard 8. Standard 9. 10. Very good. Now remember, next one is Trikonasana. Trikonasana, yes. Very good. Very good. कोई तो चल जिंद खड़िए, तुम बेतरी जा करिए। कोई तो चल जिंद खड़िए, तुम बेतरी जा One minute.
from a straight line aside. Teachers, facing towards the flag. Teachers. थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोकने वाली दक 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 जिसमें हो जुनू जुनू वो तुमने लाल लहू की मोह मोह